Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I will talk about the structure of an oral presentation. What is the structure? Structure means how it is formed. A good oral presentation is well structured. अगर well structured नहीं होगी oral presentation तो ये इंटरेस्ट ही लूज़ कर देगी, ना कोई सुनेगा और ना ही कोई उसमें इंटरेस्ट लेगा, और जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो प्रेजेंटेशन डेफिनेटली इट विल बी फेलियर, तो बिल्कुल वो नाकाम हो जाएगी. सो when you make a well structured presentation, it makes easier for the listeners to follow. अगर प्रॉपर होगी तो फॉलोअर जो फॉलो करने के लिए ऑडियंस के लिए बड़ा आसान हो जाएगा. सो हाउ मेनी पार्ट्स डज अ गुड oral presentation have, हम देखते हैं इसमें. So a well structured presentation has three parts. The beginning is also called the introduction. The middle is the body, and end, that is the conclusion. So beginning of any oral presentation should be very impressive, and it should be the most important part of any presentation. So the whole presentation depends on the beginning, on the introduction, on the introductory paragraph, right? So it should be kept in mind that it should be very impressive and very catchy at the same time, so it grabs the attention of the audience, right? So beginning, why it is that much important? Because it creates a bonding, a relationship, and it also कहते हैं ना, first impression is the last impression. Beginning से ही impression आ जाता है कि what type of presentation it would be. Would that be a relevant one or irrelevant one, interesting one, or just a boring? What type of presentation would be? It will be a well prepared, full of knowledge, information. So we get the impression from the very introduction. So introduction should be very strong, and it is the most important part of any presentation. So it should be kept in mind. Then why और ये हम कैसे इसको स्टार्ट कैसे करना है, कौन से अल्फाज से शुरू करना चाहिए? दिस शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड. गेट द ऑडियंस अटेंशन एंड सिग्नल टू बिगिन. सिग्नल दें आप ऑडियंस को दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. ऐसा नहीं लगे हैज़र्ड नहीं आप स्टार्ट कर सकते. जस्ट गिव देम अ क्लू टू गेट द अटेंशन. तो कैसे, कौन से वर्ड्स और कौन से वो यूज़ किए जा सकते हैं टू गेट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस? सो आप कह सकते हैं राइट, well, okay, let's begin, good, fine, great, can we start? क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, can we start, shall we start, let's get the ball rolling, let's get down to business. ठीक है, these are different words which you can use for as a signal. ठीक है, as a signal आप use कर सकते हैं that you are going to start your presentation. Then आप किस तरह से, और क्या तरीका हो सकता है? ज़रूरी नहीं कि आप यही अल्फाज बोलें. what how can you make and what things can be used to get the attention of the audience? ठीक है, to surprise or provoke in order to gain the audience attention. कुछ ऐसी स्टेटमेंट दें, कोई ऐसी बात करें कि वो सुनने पे मजबूर हो जाएं. ठीक है, to make people want to listen. provoke करना क्यों होता है? क्योंकि वो listen करना चाहें. to feel relaxed and even. so at the same time they will feel relaxed, and they will be surprised, and they will want to listen to you. Then to introduce the subject. इंट्रोडक्शन में आपने इस तरह से इंट्रोड्यूस कराना है सब्जेक्ट को. कैसे? begin with a joke, as I told in the last presentation as well. This is very common in the western countries that they start their presentation with a joke. एक joke से वो शुरू करते हैं, and it is really very common over there. और at the same time आप थोड़ा सा और ही टेम्पो में और मूड में और उसमें सुनना शुरू करते हैं. So अच्छा है this is. So then you can give the reference from the history. historical reference भी आप दे सकते हैं पास्ट का.
देन स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट आप बयान कर दें कि ये मेरी स्टेटमेंट है जी, देन यू कैन स्टार्ट एंड द डिस्कशन। प्रेजेंटेशन में उसी से ही आप रिलेट करके बात करना शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद दिस इज़ वेरी कॉमन, स्टेटमेंट इज़ वेरी कॉमन, हिस्टोरिकल रेफरेंसेज आर वेरी कॉमन, एंड देन अनयूजुअल और सरप्राइजिंग फैक्ट्स। अनयूजुअल से फैक्ट्स, कोई ऐसी बात बता दें कि जो कहीं अनयूजुअल हो, ठीक है, तो सुनने वाला जो है वो सुनना चाहेगा। तो अगर जैसे सपोज इन दीज डेज व्हाट इज़ द मेजर इशू, दैट इज़ इन्फ्लेशन, राइट। इन्फ्लेशन जो है, और कोई कहते कि इन्फ्लेशन तो है ही नहीं, ठीक है, सपोज दिस इज़ एन अनयूजुअल कॉमेंट। तो वो एकदम से सुनेंगे, हैं ये क्या बात कर रहा है कि ये इन्फ्लेशन तो है ही नहीं, महंगाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो एवरीवन वुड डेफिनेटली वांट टू नो व्हाट डज ही वांट टू से, कहना क्या चाहता है, किस तरह ये प्रूव करेगा इस चीज़ को। सो अनयूजुअल सी यूनिक से कुछ स्टेटमेंट दी जाए। सो दिस इज़ द वे टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट। एंड देन एन इलस्ट्रेशन फ्रॉम रियल लाइफ। रियल लाइफ इंसिडेंट आप कोट कर सकते हैं कि आजकल व्हेन वी गो आउट वी सी दिस थिंग, लाइक आजकल हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्मॉग इज़ वेरी कॉमन। सो वी फील दैट इट इज़ लाइक विंटर इज़ कमिंग before time, and we feel that as if it is about to rain. Sometimes we feel that it is just a fog, but when we feel something is itching in our eyes and something is pinching, then we realize that this is not fog, and this is not something, this is smog, right? This is a mixture of a smoke and fog. So this is a common illustration from the real life you can quote, and you can also quote some incident you experienced in your life. Then ask direct, सीधा से सवाल कर लें, कोई बात आप किसी से पूछ लें। दिस इज़ द वे टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट। देन रेट्रिकल क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन जो है जो सब जवाब देना चाहें, फ़ौरन से कहीं नो 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 ये नहीं हो सकता, येस, इस तरह का सवाल, ताकि हर कोई बीच में पार्टिसिपेट भी करे। देन ग्रीट द ऑडियंस। इंट्रोडक्शन में ही ग्रीटिंग होती है। हाउ टू ग्रीट, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ग्रीट द ऑडियंस बाय सेइंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये सारे फ्रेजेस वो बोल सकते हैं। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी, गुड आफ्टरनून एस्टीम्ड गेस्ट्स। फिर आप कह सकते हैं गुड इवनिंग मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, देन फेलो कलीग्स, मिस्टर चेयरमैन, थैंक यू फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन किसी ने करा दिया है तो आप उसको शुक्रिया भी उसका, यू आर थैंकफुल टू द पर्सन। देन इंट्रोड्यूस वन सेल्फ, किस तरह किया जा सकता है। हर एक का इंट्रोडक्शन एक तो नहीं ना होगा। समवन इज़ स्टूडेंट, अदर इज़ अ टीचर, कोई पॉलिटिशियन है तो कोई किसी की, हर एक की स्ट्रगल मुख्तलिफ है, कोई रिसर्चर है तो कोई कुछ है। सो वाई ये क्वेश्चन है टू गिव इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सो पीपल कैन आइडेंटिफाई यू, बट ऑल्सो सिर्फ ये नहीं कि एक तो लोग जान सकें कि आप कौन हैं, आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और दूसरा ये होगा टू इस्टेब्लिश योर अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट, और दूसरा ये कि आपको इसलिए सुनना चाहेंगे कि आप अथॉरिटी हैं उस सब्जेक्ट पे। अगर कोई रिलीजन की बात कर रहा है या पॉलिटिक्स की बात कर रहा है या हेल्थ की बात कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई मर्ज़ की बात कर रहा है, तो आपको बताना चाह रहा है, तो आप कहते हैं ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एन एक्सपीरियंस मैन, ही हैज़ स्टडीड दिस सब्जेक्ट, ही विल टेल मी द ऑथेंटिक नॉलेज। ऑथेंटिक नॉलेज हमें मिलेगी, दैट्स वाई यू वुड लव टू लिसन टू द पर्सन। ये तरीका होता है। सो दिस इज़ व्हाट the introduction does. So to allow the audience to see your point of view on the subject, और साथ में पता चल जाता है कि ये कौन बात कर रहा है इस सब्जेक्ट के बारे में, कौन है। You are a student, एक स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट does not have full command on the subject, उसकी कैसी होगी, उसकी बेसिक नॉलेज होगी, बेसिक चीज़ें तो बता सकता है। ही कैन नॉट गिव यू इन डेप्थ स्टडी ऑफ एनीथिंग, राइट। कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप रिसर्च करते हैं और सीखते हैं, लेकिन एक फ्रॉम अ स्टूडेंट वी डोंट एक्सपेक्ट अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, ठीक है। लेकिन समटाइम्स दे कैन डू डेफिनेटली, बट स्टूडेंट इज़ अ स्टूडेंट। सो अ रिसर्चर की बड़ी वास्ट स्टडी होती है, बहुत बुक्स पढ़ी होती हैं, बहुत स्टडी किया होता है, तो हमें वहाँ से पता चलता है कि इसने एक प्रैक्टिकल रिसर्च की है, एंड वी लिसन टू हिम। देन अ डायरेक्टर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, एक
बिल्कुल न्यू बिगिनर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि बिगिनर है, ये सीख रहा है, तो हम उसको समझ सकते हैं। लेमैन हो सकता है, ठीक है, दिस नॉट एक आम आदमी। देन द स्टार्ट आपने कैसे करना है? माई नेम इज़, आप अपना बताएं। माई नेम इज़ आमना ज़ोहरा कुरैशी, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ रिसर्चर, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस सब्जेक्ट फॉर 10 years। आप बताएं, मैं 10 साल से इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ। आई हैव हैड वाइड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, ठीक है, टीचिंग की फील्ड में या रिसर्च की फील्ड में या किसी भी ऐसी फील्ड में जिससे वो बात कर रहे हैं, उसका इतना वाइड एक्सपीरियंस है, दे कैन टेल। तो आप समझ सकते हैं कि ही हैज़ द मतलब नॉलेज, तो ही विल गिव मी ऑथेंटिक information. So I'd like to talk to you about some of my findings in a study I did on किस पे, किसी पे भी हो सकती है। जैसे अब कल जो है वो हमारा लेक्चर होगा, शायद हो जाए पिंक रिबन डे पे, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। तो कुछ आते हैं डॉक्टर्स, दे टॉक अबाउट द टॉपिक, सो यू गेट द फाइंडिंग्स और स्टडीज ऑफ द पीपल कि क्या है इसमें। देन गिव टाइटल एंड इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट। टाइटल बता के आपने उसको फिर भी इंट्रोड्यूस कराना है सब्जेक्ट को। व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू स्पीक अबाउट। आप बहुत बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, ठीक है। अब ये हम जैसे प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ आज क्या पिक किया? स्ट्रक्चर उसका कैसे होना चाहिए। स्ट्रक्चर में भी हम इंट्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं कि इंट्रोड्यूस कैसे कराना है, क्योंकि इंट्रोड्यूस जब आप कराते हैं, या इंट्रोडक्शन जो होते हैं, दैट इज़ द बैकबोन। उस पे ही सारा आपकी जो स्ट्रक्चर है वो स्टैंड करता है प्रेजेंटेशन का। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट्स वाई आई हैव मेड इट द सेकेंड प्रेजेंटेशन ऑन इट। सो आई वॉन्ट टू मेक द पॉइंट क्लियर। द मोर यू लिसन, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू नो, तो आपकी इम्प्रूवमेंट उसमें आएगी डेफिनेटली। सो इसके लिए जो है सिचुएट द सब्जेक्ट आप बताएं। फिर उसके बाद इन टाइम एंड प्लेस, क्या कहाँ कौन से वक्त में कौन से उसके रेफरेंस से आप बात कर रहे हैं, यू शुड इंट्रोड्यूस दैट इन रिलेशन टू द ऑडियंस का उसके साथ, उस सब्जेक्ट के साथ क्या ताल्लुक़ है। सपोज़ आप पढ़ रहे हैं और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाती है, जिस तरह आजकल तो हम लाइफ स्किल्स भी पढ़ रहे हैं। लाइफ स्किल्स में क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट के, जो आप रेगुलर रूटीन में पढ़ रहे हैं उससे हट के हम बात कर रहे हैं, ठीक है। स्किल्स विच आर नेसेसरी फॉर लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ। स्किल्स सिर्फ इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। एम्पथी, सिंपथी पे हमने एक लेक्चर दिया। सो दिस द रिलेशन is built between the audience and the presenter। तो एक उसको पता चलता है ये मेरी बात कर रहा है, मेरे इर्द गिर्द के माहौल की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू लिसन टू यू। देन इट्स इम्पॉर्टेंस, आपको पता चलती है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। देन गिव रफ आइडिया और वर्किंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। आपने रफ आइडिया उनको बता देना है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आपकी जो है आई प्लान टू स्पीक अबाउट, आप इस तरह से बता सकते हैं, आई प्लान टू स्पीक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन। आई प्लान टू स्पीक अबाउट दिस टॉपिक का नाम बता दें, वर्किंग डेफिनेशन। देन टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, आज मैं इस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ। द सब्जेक्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन इज़ डैश 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 का मतलब है यू कैन पुट द टाइटल ओवर देयर कि सब्जेक्ट क्या है। देन द थीम ऑफ माई टॉक इज़, मेरा थीम क्या होगा। ये दीज आर द डिफरेंट वेज, आपने एक यूज़ करना है। पीछे भी जो मैंने बताए हैं, वैरायटी ऑफ वर्ड्स फॉर योर इंट्रोडक्शन, वैरायटी ऑफ वर्ड्स फॉर ग्रीटिंग, तो आपने उसमें से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द आपने देख लेना है कि वहाँ पे गेस्ट में कौन लोग हैं, ठीक है, उनके मुताबिक आपने उनको एड्रेस करना है। आई हैव बीन आस्क्ड टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ, ठीक है, समटाइम्स डिमांड की जाती है कि आपने इस टॉपिक पे बात करनी है। देन यू टेल कि मुझे ये कहा गया है कि आई एम सपोज टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। देन टू गिव एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज करना, अगर किसी ने स्पॉन्सर किया है, इफ़ समवन हैज़ स्पॉन्सर्ड योर program, if someone supported you in any research work or in your presentation, ठीक है, तो आपने उसको इंकरेज करना है, उसको अप्रिशिएट करना है और उसका बताना है। यू मे वॉन्ट टू गिव एक्नॉलेजमेंट्स हेयर टू इफ़ यू हैव बीन स्पॉन्सर्ड, अगर तो स्पॉन्सर्ड किया गया, जैसे हमारे कॉलेज में क्या होता है,
देयर आर स्पोर्ट्स डे पे जो फेस्टिवल होता है तो दैट इज़ स्पॉन्सर्ड, कि कोई आती है कंपनी, जैसे कुकिंग ऑयल वगैरह वाले स्पेशल आते हैं, तो दे स्पॉन्सर्ड द होल इवेंट एंड दे गिव यू प्राइजेज एंड ऑल दैट, तो ये स्पॉन्सर्ड होता है। तो दे देन द प्रिंसिपल थैंक्स them, then supported by, या आप बताएंगे दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय, देन इनकरेज्ड बाय, ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र कर सकते हैं, देन किसी प्रोफेसर का, इफ़ समवन हेल्प यू इन मेकिंग दैट event or presentation possible, then you can quote the name of the person as well. Your research and paper may have been the work of a collaborative effort. अगर तो collaboration में काम किया गया है, एक research है, तो अगर collaboration में किया गया है तो आप definitely उनको encourage करेंगे. Like my research was assessment of listening comprehension at postgraduate level. So that was not possible for me to do the research in my college, and some of the part was done in the university and the other was done in my college. So that was a collaborative thing in a way, right? Sometimes there are research work where there is first author and second authors, so that is also a we can say a collaborative effort. सो ट्राई टू डिटर्मिन द एटीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ द ऑडियंस. डिटर्मिन कर लें कि ऑडियंस की नॉलेज कितना है, क्या वो बहुत वेल वर्स्ड हैं. अगर बहुत वो स्कॉलर्स हैं तो आप तो उनके सामने कुछ नहीं है. सपोज़ मतलब अगर आप इफ़ यू आर स्टूडेंट, इफ़ आई एम अ प्रोफेसर, तो अगर मैं जा रही हूँ और मेरे सामने स्कॉलर्स हैं और वो बड़े ऑथेंटिक हैं और बहुत उन्होंने किताबें भी लिखी हुई हैं, तो डेफिनेटली माई नॉलेज वुड बी लेसर दैन देयर नॉलेज. तो क्या होगा, तो आपको समझ के थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट. डिटर्मिन कर लें कि आप किन से बात करने चाहिए. हैव यू एवर हर्ड ऑफ, पूछ लें, हैव यू एवर हर्ड ऑफ. स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनसे हम ये सवाल कर लेते हैं कि आपने कभी देखा है, सुना है. लाइक आई आस्क्ड द क्वेश्चन इन द क्लास, हैव यू एवर रेड एनी लेटर टू द एडिटर. ये मैंने सवाल किया, तो सो आई गॉट द नॉलेज कि आप में से कितनों ने पढ़ा हुआ है, कितनों ने नहीं पढ़ा हुआ. हाउ कैन आई स्टार्ट, मैंने किस स्टेज से आपको सिखाना शुरू करना है. सो वी गेट द बैकग्राउंड नॉलेज. सो यू मे ऑलरेडी नो, हम ये भी कह सकते हैं आपने पहले ही ये पढ़ा होगा. आई फील श्योर दैट सम ऑफ़ यू, मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोगों को ये पता है. ठीक है, इस तरह से. सो दीज आर सम वेज इन विच वी कैन ट्राई टू डिटर्मिन द एटीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ द ऑडियंस. एवरीबॉडी एवरी डे यू इनकाउंटर. ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं. सो गिव योर ऑब्जेक्टिव. आपने ऑब्जेक्टिव बताना है कि आप इंट्रोडक्शन का ये पार्ट है सारा. ऑब्जेक्टिव बताएं. एक जनरल पर्पस होता है एंड एक स्पेसिफिक वन होता है. जनरल पर्पस क्या है, उसमें आपने कैसी बातें करनी होती हैं. इन द जनरल पर्पस टू गिव एन ओवरव्यू बता दें आप टॉपिक का कि क्या है. टू समराइज, थोड़ा सा ब्रीफली बता दें. बैकग्राउंड बता दें. टू डिस्कस द करंट सिचुएशन कि आजकल क्या सिचुएशन है. देन टू एक्सप्लेन हाउ समथिंग इज़ डन. ठीक है, और ये भी आप बता सकते हैं कि किस तरह ये आजकल किया जा रहा है. देन स्पेसिफिक पर्पस में क्या हो, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जनरल बात तो हम सभी करते हैं, बट स्पेसिफिक वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो व्हाट यू वांट द ऑडियंस टू टेक अवे विद देम आफ्टर लिसनिंग टू यू. आपकी बात सुने तो लेके क्या जाएं, क्या सीख के जाएंगे. दिस इज़ वाट शुड बी केप्ट इन माइंड. क्या इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा. व्हाट यू वांट देम टू डू, आप चाहते क्या हैं, ये इसके बाद क्या करें. सपोज़ हमारे जैसे कॉलेज में अभी पिछले ही दिनों में जो है वो एक सेमिनार हुआ, तो उसमें जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि मेंटल हेल्थ के बारे में था. सो उन्होंने यही सोचा होगा ना कि ये अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो कि स्टूडेंट जो है वो अनयूजुअल बिहेव कर रही है या बहुत उदास है या कुछ उसमें बहुत तब्दीलियाँ आ गई हैं उसके एटीट्यूड में, उसमें तो डेफिनेटली वो डिप्रेशन में है, तो उसका एक ट्रीटमेंट होना चाहिए. एंड दिस इज़ नॉट अ स्टिग्मा, ये कोई स्टिग्मा नहीं है, तो हमें इलाज कराना चाहिए. सो द ऑडियंस ओवर देयर दे गॉट दिस लेसन फ्रॉम देयर कि हमें इन चीज़ों को ईजी नहीं लेना चाहिए और इनको भी वैसे ही इम्पॉर्टेंट समझना चाहिए जैसे हमारी आम बीमारी होती है, सर दर्द है, बुखार है. सो दीज आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ दैट थिंग एंड वी शुड डील विद इट. इसको हमें ना इग्नोर करना चाहिए और ना हमें गलत
इलाज की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट दे शुड रिमेंबर, क्या इन्हें याद रखना है, ठीक है। सो ये हमें जहन में रखना है। देन अनाउंस योर आउटलाइन, अनाउंस कर दें जी, कीप द आउटलाइन सिंपल, 2 और 3 पॉइंट्स, 3 या 2 लाइनों में आपने आउटलाइन बता देनी है। पार्ट्स ऑफ प्रेजेंटेशन में क्या है वो बताएंगे, आपने कितने पार्ट्स में अपनी प्रेजेंटेशन को डिवाइड किया। आई हैव ब्रोकन माई स्पीच इनटू एक्स पार्ट्स, एक्स पार्ट्स मीन्स आप कह सकते हैं 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, या आई हैव नॉट डिवाइडेड माई, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं होती इफ़ दैट प्रेजेंटेशन इज़ इन जस्ट 1 पार्ट। आई हैव डिवाइडेड माई प्रेजेंटेशन इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे आप कहेंगे, इन द फर्स्ट पार्ट आई विल गिव अ बेसिक डेफिनेशंस, in the next section I will explain its importance, in the third part I am going to show you the effect of this thing, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में इन द लास्ट पार्ट आई वुड लाइक टू गिव अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में समटाइम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। सो दिस इज़ द वे एंड दिस इज़ हाउ यू कैन डिवाइड योर प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स एंड यू कैन स्टार्ट द पार्ट विद दीज वर्ड्स, ठीक है। इस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन एंड कमेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप उनको अलाउ करें ऑडियंस को कि वो सवाल करें, कमेंट करें। इसको तरीका होता है समटाइम्स, मैं अभी बताती हूँ स्लाइड से, आई वुड आस्क यू टू सेव योर क्वेश्चंस फॉर द एंड, ये सबसे बेहतरीन होते हैं। समटाइम्स होते हैं आप बीच में कोई सवाल करते हैं तो प्रेजेंटर ने उसका जवाब पहले से ही उस प्रेजेंटेशन में देना होता है, अभी उस पार्ट में वो आया नहीं होता, ठीक है। दैट्स वाई बेहतर ये होता है कि सब सुने और उस लास्ट में उसका क्वेश्चन आंसर सेशन हो। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ द स्पीच फॉर अ डिस्कशन, आप ये भी कह सकते हैं कि बाद में हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा, हम बाद में बात करेंगे। यू मे इंटरप्ट मी एट एनी मोमेंट टू आस्क क्वेश्चन और मेक अ कमेंट, आप ये भी ओपन चॉइस से आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, बट दिस डज नॉट सूट कि आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हो और बीच में ही कोई हाथ खड़ा करके सवाल करने लग पड़े, इट डजंट लुक सूटेबल, ठीक है। क्या ख्याल है आपका? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Please stop me if you don't understand anything I say, but could you keep any specific question until I have finished? तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर if you don't understand you can stop me, but it is better to keep it for the end of the presentation, end पे रखें, ठीक है। और ट्रांजिशन बनानी चाहिए, आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो रहे हैं, मेक अ ट्रांजिशन बिटवीन द इंट्रोडक्शन एंड द बॉडी। अगर आपने उसमें पॉइंट्स में भी ट्रांजिशन करने जा रहे हैं, जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, उसमें तब्दीली आ रही है, तो देयर शुड बी अ ट्रांजिशन, पता चलना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस टर्न टू द पॉइंट 1, आपने इस तरह करना है। नाउ लेट अस कम टू द क्या कह सकते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। नाउ लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस, ठीक है। डिफरेंट वेज हैं जिससे आप इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। ग्लॉसरी हो सकती है, एक्रोनिम्स हो सकते हैं। वो क्या होते हैं जी, आपने कुछ टेक्निकल टर्म्स इफ़ यू आर यूजिंग इन दैट एंड यू आर यूजिंग सम एब्रीविएशन, देन यू आर सपोज टू एक्सप्लेन दैट, एब्रीविएशन मस्ट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। बाज़ दफ़ा जो होते हैं ना, I always ask for explanation कि ये इसका क्या मतलब है। समटाइम्स पीपल आर सो हैबिचुअल कि वो टेक्स्ट कर कर ना दे आर यूज टू दीज एब्रीविएशंस, और दैट्स वाई उनको फील नहीं होता, दे फील कि हर किसी को मालूम ही होगा। सो वेन एवर यू आर डूइंग प्रेजेंटेशन एंड यू आर डूइंग यूजिंग दीज एब्रीविएशन, उसको एक्सप्लेन ज़रूर करें ताकि जो है सुनने वाले को पता हो कि आप क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। फुल नेम्स इसके दें। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन feel free to ask. You can ask any question in the comment section. I'll try to explain that here. Thank you very much. Have a good day. God bless you.